सर एक चैप्टर 5 का डाउट था। अभी ये चैप्टर आज मुझे खत्म करना है, मेरी आखिरी क्लास है एग्जाम से पहले। उसके बाद डाउट आप पर्सनल पूछ लेना। पर्सनल कैसे? नहीं यार, पर्सनल का मतलब फोन होता है। ऑल राइट, सो चिल्ड्रन, कैन यू सी द स्क्रीन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. In the previous class, we studied oxidation reactions. That means those reactions which involve loss of electrons. ठीक है? Today we are going to study reduction reaction. Reduction reaction is just opposite of oxidation reactions. So reduction reactions may be defined as the process of addition of hydrogen. Oxidation में क्या था? Process of addition of oxygen. यहाँ क्या है? Process of addition of hydrogen or removal of oxygen. It is just opposite of what we studied in case of oxidation reactions. Now examples. When sodium metal reacts with hydrogen metal, hydrogen, ठीक है, upon heating it gives sodium hydride, NaH. What is happening? Addition of hydrogen is taking place to sodium. So sodium is getting reduced, whereas hydrogen is getting oxidized. So addition of hydrogen to sodium is taking place, therefore sodium is undergoing oxidation. Clear? Similarly, when H2 gas react with Cl2 gas, they form 2HCl. So what is happening? Which substance is undergoing oxidation? Chlorine. Why chlorine is reduction? Chlorine is undergoing reduction because addition of hydrogen is taking place in it. Chlorine is getting converted into HCl. ठीक है, तो आप एरो बनाएंगे ऐसे, क्लोरीन के ऊपर से एरो, HCl. ठीक है, so conversion of chlorine into HCl is a reduction process because it involves addition of hydrogen to chlorine. At the same time, hydrogen is getting oxidized because hydrogen involves addition of more electronegative element, chlorine. क्लियर? मैं दोनों चीज डिस्कस करते चल रहा हूँ यहाँ पे, ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, CuO plus H2 give rise to Cu plus H2O. Okay, so what is happening? CuO is a compound. When hydrogen gets added to it, what is formed? Hydrogen takes the oxygen away and forms water. So conversion of copper oxide into copper, क्या चेंज हो रहा है? When copper oxide is changing into copper, what is happening? Removal of oxygen. Oxygen is removed. Okay, wonderful, great. So those processes which involve removal of oxygen are called reduction reactions. ठीक है? At the same time, what is happening to hydrogen? Hydrogen is getting oxygen and getting converted into H2O. So hydrogen is getting oxidized. So out of this, copper oxide is getting reduced and hydrogen is getting oxidized. We can define it by in terms of removal of oxygen. Then the second concept of reduction reaction is addition of electropositive element or removal of electronegative element. हमने ऑक्सीडेशन में क्या पढ़ा था? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. यहाँ पे क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन. एंड रिमूवल के टर्म्स में रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन. ऑक्सीडेशन में क्या था? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. रिडक्शन में रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. एग्जांपल्स, 2Mg plus O2 give rise to 2MgO. अब हमको इसमें देखना है कि Mg ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है कि ऑक्सीजन. ठीक है, हम दोनों को देखते हैं. मैग्नीशियम इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड. व्हाट इज हैपनिंग? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन इज गेटिंग एडेड टू मैग्नीशियम टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनेगा? जब ऑक्सीजन ऐड हुआ, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है? ज्यादा है मैग्नीशियम से. सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज ऑक्सीडेशन. इसका मतलब मैग्नीशियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. ठीक है, अब ऑक्सीजन का क्या होगा? ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में देखें, ऑक्सीजन में कौन आके ऐड हो रहा है? मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मैग्नीशियम, एंड देन इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. सो ऑक्सीजन इज गेटिंग reduced. ठीक है, why oxygen is getting reduced? Because more electropositive element magnesium is getting added to oxygen. So conversion of oxygen into magnesium oxide is a process of reduction because it involves addition of more electropositive element magnesium. Understood?
चिल्ड्रन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Next, 2Fe plus 3Cl2 gives 2FeCl3. यहाँ भी वैसे ही है. फ्लोरीन, अगर हम इसका देखें आयरन का, आयरन में क्या हो रहा है? क्लोरीन ऐड हो रहा है. क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो आयरन का ऑक्सीडेशन. क्लोरीन में कौन आके ऐड हो रहा है FeCl3 बनाने के लिए? Fe. Fe की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? क्लोरीन से ज्यादा की कम? कम. इसका मतलब फ्लोरीन आयरन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन, सॉरी, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन क्लोरीन. Iron is more electropositive than chlorine. So chlorine involves addition of more electropositive element Fe, and therefore conversion of chlorine into FeCl3 is reduction reaction. जबकि conversion of iron into FeCl3 is oxidation reaction. Similarly, another example, Hg plus HgCl2. Hg plus HgCl2 क्या बनेगा? Hg2Cl2. अब HgCl2 में क्या ऐड हो रहा है? एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है. एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आके HgCl2 में ऐड हो रहा है. इसका मतलब HgCl2 का क्या हुआ? रिडक्शन. जबकि Hg का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, क्योंकि उसमें क्लोरीन भी आके उसमें ऐड हो रहा है. ठीक. सो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव Hg इज टेकिंग प्लेस. Hg मींस मर्क्यूरी. Then Cu plus CuCl2 give rise to Cu2Cl2. अब देखिए इसमें क्या हो रहा है? CuCl2 में एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कॉपर आके और ऐड हो गया एक एटम. तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज टेकिंग प्लेस. सो CuCl2 is getting reduced because addition of electropositive copper is taking place to CuCl2. तो CuCl2 का रिडक्शन हो रहा है. इसका मतलब कॉपर का क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन, क्योंकि उसमें CuCl2 ऐड हो गया. उसको उल्टा सोचिए, Cu में क्या जुड़ गया? CuCl2. CuCl2 में क्या है? क्लोरीन. तो क्लोरीन आके ऐड हो गया, जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव. ओके. सिमिलरली AuCl3 गिव राइज टू AuCl plus Cl2. अभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा. इसमें देखिए क्या हो रहा है? AuCl3 से क्या निकल रहा है बाहर? Cl2. यहाँ पे 3 Cl थे, अब यहाँ पे एक ही Cl बचा. सो कन्वर्सन ऑफ AuCl3 into AuCl involves removal of more electronegative element chlorine. So when removal of more electronegative element takes place, then it is called reduction. Understood children? सर एक इक्वेशन में दो रिएक्शन सर जैसे At a time one. अच्छा, सभी लोग अपना माइक बंद करो पहले. Now one can speak. सर एक इक्वेशन में दो टाइप के रिएक्शन हो सकते हैं. रिडक्शन ऑक्सीडेशन हमेशा एक साथ ही होते हैं और एक ही रिएक्शन में होते हैं बेटा. ठीक है. और अच्छा, दूसरा क्वेश्चन जो आपने पूछा, मुझे जो समझ में आ रहा है, आपने जैसे मैंने ये बोला कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है AuCl3 वाली. यस, ऑफ कोर्स, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कैन बी रेडॉक्स रिएक्शन. डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैन बी रेडॉक्स रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन बी रेडॉक्स रिएक्शन. बट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन नेवर बी रेडॉक्स रिएक्शन. ठीक है. Double displacement reactions can never be redox reaction. Displacement reaction can be redox reaction. Combination reaction can be redox reaction. Decomposition reaction can be redox डबल reaction. डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं सर? इसलिए कि उसमें ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज नहीं होता. There is only mutual exchange of ions. No change in oxidation number means no loss or gain of electrons takes place. सिर्फ ions change होते हैं, बस exchange होते हैं ions. There is only exchange of ions. No, we can say no loss of electron or no gain of electron, no increase in oxidation number or no decrease in oxidation number takes place in double displacement reactions. अब इसमें नहीं लिखा है, वो आपके पार्ट का नहीं है, फिर भी बोल देता हूँ आपको. एक हिंट देता हूँ, आप चाहो तो दिमाग में रखना, नहीं भी रखोगे कोई फर्क नहीं पड़ता. Those combination reactions in which at least one of the reactant is in pure elemental form, जिसमें कम से कम एक रिएक्टेंट ऐसा हो जो प्योर एलिमेंट के रूप में हो, they will be redox reactions. So those combination reactions which involve at least one of the reactant in pure elemental form will be redox. जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल देखा है 2Mg plus O2 2MgO. ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है और साथ में रेडॉक्स भी रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन प्योर एलिमेंट के रूप में है, मैग्नीशियम भी प्योर एलिमेंट के रूप में. कम ये सेकंड
मिनिमम 1। ओके सर। जैसे Hg प्लस HgCl2, अब इसमें Hg प्योर एलिमेंट है, HgCl2 प्योर एलिमेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन एक तो रिएक्टेंट है ना प्योर एलिमेंटल फॉर्म में। सो दोज रिएक्शंस वेदर दे आर कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट, if any of the reactant is present in pure elemental form, then it will be a redox reaction. जब हम डिकम्पोजिशन की बात करें तो डिकम्पोजिशन क्या होता है, सिंगल कंपाउंड होता है, इट स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स, ठीक है। डिकम्पोजिशन में एक ही कंपाउंड होता है, वो टूट के 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट्स बनाता है। अगर एक भी प्रोडक्ट, नॉट टॉकिंग अबाउट रिएक्टेंट, रिमेंबर आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट्स, if any of the product is in pure elemental form, then the decomposition reaction would be redox reaction, ठीक है, समझ में आया। अगर कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसमें एक भी प्रोडक्ट कैसा है, प्योर एलिमेंट के रूप में है, तो वो रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन भी होगी। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में तो आपको पता ही है कि एक रिएक्टेंट जो होता है वो हमेशा प्योर एलिमेंट में ही होता है। जैसे तो इधर AuCl3 है क्या प्योर? यस, देखो AuCl3 इज नॉट प्योर, AuCl3 इज कंपाउंड, प्योर है लेकिन इट इज कंपाउंड। मैं क्या बोल रहा हूँ, प्योर एलिमेंटल फॉर्म, एलिमेंट के रूप में। So AuCl3 is compound, though it is pure. But जब ये टूट रहा है तो किसमें टूट रहा है, AuCl भी कंपाउंड है और ये प्योर एलिमेंट है क्लोरीन, ये सिर्फ क्लोरीन एलिमेंट है, नॉट कंपाउंड। सर तो आपने बोला कोई प्रोडक्ट प्योर होगा तो भी होगा, तो कौन एग्जांपल? लड़की आधा सुनती आधा नहीं सुनती। प्योर एलिमेंटल फॉर्म बोला है मैंने, प्योर सब्सटेंस नहीं बोला। तो प्रोडक्ट प्योर एलिमेंटल फॉर्म का एग्जांपल? ये Cl2 है ना, यहाँ पे AuCl3 give rise to AuCl plus Cl2, तो Cl2 is an element and it is in pure form, मतलब ये एलिमेंट है। जब एक भी प्रोडक्ट एलिमेंट होगा तो रिएक्शन वुड बी रेडॉक्स रिएक्शन। सर इसमें AuCl3 Cl2 हो गया, तो इसमें क्या हुआ, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? रिडक्शन है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो रहा है। AuCl3 से एक Cl2 निकल गया। Cl2 क्या क्लोरीन कैसा एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। Au भी तो निकल गया ना सर? अरे Au नहीं निकला है, AuCl में तो बॉन्डिंग है ही, AuCl में बॉन्डिंग है, एक Au 3 क्लोरीन से यहाँ बॉन्डेड है, वहां पे Au एक ही Cl से बॉन्डेड है। अब Au कन्वर्स, बात होती है किसका कन्वर्शन, सो कन्वर्शन ऑफ AuCl3 into Cl2 इज रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। कन्वर्शन ऑफ AuCl3 into Cl2 is reduction reaction. Conversion of AuCl3 into AuCl is oxidation reaction. AuCl3 जब कन्वर्ट हुआ AuCl में तो ऑक्सीडेशन है, AuCl3 कन्वर्ट हुआ Cl2 में तो रिडक्शन है। और ये ऑक्सीडेशन कैसे है? AuCl3 में Au का वैलेंसी कितनी होगी, +3, क्योंकि Cl की -1 होती है, तो -1 into 3 -3, टोटल न्यूट्रल है, ये -3 तो जीरो चार्ज करने के यहाँ पे +3 होगा, तो +3 से कन्वर्ट हो गया इस किसमें, +1 में। यहाँ पे AuCl में क्या, Cl का -1 तो Au का +1, सो +3 से +1 में कन्वर्ट हुआ, क्या हुआ, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। सो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, रिडक्शन। रिडक्शन। सर आप ऑक्सीडेशन बोला था अभी। एक सेकंड, हाँ तो ये रिडक्शन हुआ, हाँ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे रिडक्शन हुआ। अब क्लोरीन का देखोगे, इधर क्लोरीन कितना है, इधर -1, ठीक है, -1 से कन्वर्ट हुआ Cl2 में। जब Cl2 में कन्वर्ट हुआ Cl2 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0। सो कन्वर्शन ऑफ AuCl3 into Cl2 इन्वॉल्व्स इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, -1 से 0 हो रहा है, ठीक है, इसलिए ऑक्सीडेशन हो गया ये, ठीक। नाउ नेक्स्ट द प्रो, हाँ जी सर, अगर हमें मतलब पूछा है कि C+O2 = CO2 दिया हुआ है और हमें पूछा है कौन सी रिएक्शन है, तो हम मतलब जैसे ये रेडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन, तो सर इसमें रेडॉक्स लिखेंगे या फिर ऑक्सीडेशन लिखेंगे? रेडॉक्स नहीं लिखेंगे, रेडॉक्स कभी भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती नहीं है। उसमें C+O2 CO2 के लिए आप या तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिख सकते हैं या तो रेडॉक्स रिएक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। नेवर राइट ऑक्सीडेशन, ऑलवेज राइट रेडॉक्स।
क्योंकि अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है उस रिएक्शन में तो उसी रिएक्शन में रिडक्शन भी हो ही रहा है, वो हम उसको आइडेंटिफाई कर पाए या ना कर पाए, ठीक है। इट विल बी ऑलवेज रेडॉक्स, इट विल नॉट बी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। देन अनदर कॉन्सेप्ट इज द प्रोसेस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज रिडक्शन। जैसे Fe3 पॉजिटिव आयन जब एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या बनाएगा, Fe डाई पॉजिटिव, ठीक है, 3 प्लस और एक माइनस चार्ज मिलके क्या बन गया +2। तो इसमें क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। सिमिलरली Cu डाई पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू Cu पॉजिटिव, रिडक्शन बिकॉज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टेकिंग प्लेस। इसको ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में भी आप देख सकते हो, ठीक है। Fe3 पॉजिटिव उसका ऑक्सीडेशन नंबर था, डाई पॉजिटिव में हो गया मतलब डिक्रीज हो गया, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन। Cu डाई पॉजिटिव है, डिक्रीज होके Cu पॉजिटिव बना लिया, इसका मतलब रिडक्शन। सर ऑक्सीडेशन नंबर मतलब वो आयन वैलेंसी ही होगा। जब कोई आयन है, मोनोएटॉमिक आयन है जिसमें एक ही एटम है और वो आयन है, उसमें जो भी चार्ज होता है वो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होता है। द चार्ज ऑन मोनोएटॉमिक आयंस इज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। बस एक ही एटम होना चाहिए, जैसे Fe3 पॉजिटिव है, Cu डाई पॉजिटिव। लेकिन अगर हम NO3 नेगेटिव लेंगे, सपोज NO3 नेगेटिव में फिर आप कैसे करोगे, उसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट अलग होगा, ऑक्सीजन का अलग होगा, वहां फिर चार्ज से नहीं होगा, फिर वो X मान के निकालेंगे, नाइट्रोजन का X मान लेंगे, ऑक्सीजन का -2 मान के क्या करेंगे, 3 है, -2 × 6 इक्वल्स -1, फिर X की वैल्यू निकाल लेंगे। नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सर अच्छा, एक मिनट, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन दोनों में इलेक्ट्रॉन्स वाला जो था, ऑक्सीडेशन में क्या था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसमें तो हमने ऐड किया था ना। अरे इसके पहले वाले में ऐड किया था, उसके पहले सोडियम वाला जो किया था उसमें लॉस नहीं हुआ है, ये वाला, ये सोडियम लूजिंग इलेक्ट्रॉन और फॉर्मिंग सोडियम आयन, सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकला, सोडियम आयन बना, ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। या आप इसको बहुत सिंपल तरीके से समझ लो, जब प्रोडक्ट साइड में इलेक्ट्रॉन लिखा रहे, ठीक है, अलग से इलेक्ट्रॉन लिखा मतलब ऑक्सीडेशन, और जब रिएक्टेंट साइड में इलेक्ट्रॉन लिखा रहे, इसका मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, वो रिडक्शन है। स्नेहा, ठीक है। नाउ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अच्छा, LIC एजेंट्स होते हैं, ये इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये आपका पैसा लेके आपको इंश्योर्ड कर देते हैं किसी बीमारी और एक्सीडेंट के प्रति, ठीक है, आपकी पॉलिसी देके आपको इंश्योर्ड कर दिया। सो इसमें इसी तरीके से अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखें तो क्या होगा, दो सब्सटेंसेस विच ऑक्सीडाइज अदर्स आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बट दे देमसेल्व्स गेट रिड्यूस्ड। वो क्या है, दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज किया लेकिन खुद क्या हुआ, रिड्यूस हो गया, तो ऐसे सब्सटेंसेस क्या कहलाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहलाते हैं। क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Okay. The substances which oxidize other substances are called oxidizing agents, but they undergo reduction themselves. इसका मतलब जिस भी सब्सटेंस का रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जिस रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो अभी जो रिएक्शंस में आप ऊपर देख रहे थे, जिसका जैसे ये वाली रिएक्शन मान लीजिए Fe+3Cl2 FeCl3, तो Fe का क्या हुआ, इसमें ऑक्सीडेशन हुआ क्योंकि क्लोरीन ऐड हो गया, ठीक है, तो Fe का ऑक्सीडेशन हुआ, इसका मतलब Fe इज रिड्यूसिंग एजेंट। अब क्लोरीन ने क्या किया, क्लोरीन का रिडक्शन हुआ था क्योंकि इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट Fe जुड़ा, तो क्लोरीन का रिडक्शन हुआ, इसका मतलब क्लोरीन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बेसिकली आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सिंपल वर्ड्स में समझ लीजिए कि जनरली मेटल्स बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट और नॉन मेटल्स बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो भी मेटल्स होते हैं, मेटल्स का मतलब विच इज मोर मेटलिक, ठीक है, जो ज्यादा मेटलिक एलिमेंट है या जो मेटल है दैट विल बी रिड्यूसिंग एजेंट, and the non-metal or the more electronegative element would always be oxidizing agent. Understood? So oxidizing agents.
सर एक सेकंड पहले इसको देख लो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, इट इज ए सब्सटेंस व्हिच कैन, क्या कर सकता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ऐड ऑक्सीजन और एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट टू अदर मटेरियल्स, मतलब which can donate oxygen or which can donate more electronegative element is called oxidizing agent. That reactant which can give oxygen atom to other or which can give more electronegative element to other is oxidizing agent. The substance which can remove hydrogen or which can take up hydrogen from other substances or an electropositive element which can take up an electropositive element are called oxidizing agent. ठीक है, जो भी रिएक्टेंट एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ले सकता है या जो हाइड्रोजन किसी से बाहर निकाल के हाइड्रोजन को ले सकता है, वो क्या हो जाएगा? सॉरी, विच कैन गिव हाइड्रोजन, सब्सटेंस विच कैन गिव विच कैन टेक हाइड्रोजन और विच कैन टेक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और तीसरा विच कैन गेन इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जब एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसका प्रोसेस क्या हुआ? रिडक्शन, और रिडक्शन के बाद वो खुद क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, सो जो डेफिनेशन ऑक्सीडेशन की थी उसकी जस्ट उल्टी डेफिनेशन किसकी होगी? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। सिमिलरली जो भी डेफिनेशन रिड्यूसिंग एजेंट्स की थी, सॉरी रिडक्शन की थी, उसकी जस्ट अपोजिट डेफिनेशन होगी रिड्यूसिंग एजेंट की। क्लियर? सर आपने बोला कि Yes, sir. जो मेटल्स हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। बिकॉज मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। नहीं, हम लोग जैसे देखते हैं मेटल वो कुछ था, उसने Cl2 ले लिया तो फिर उसने इलेक्ट्रोनेगेटिव लिया तो फिर क्या हो गया? वो उसका रिडक्शन हो गया। नहीं, अब देखो ये वही तो बता रहा हूं मैं आपसे, ये Mg और O2 दिख रहा है स्क्रीन में। सो 2Mg प्लस O2। अब 2Mg क्या कर रहा है? ऑक्सीजन यहाँ से ले रहा है तो MgO बना रहा है, मतलब मैग्नीशियम हैज टेकन ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन लिया तो क्या हो गया? मैग्नीशियम का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। Oxidation. और मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ, इसका मतलब मैग्नीशियम क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है जिस रिएक्टेंट का, वो रिड्यूसिंग एजेंट है। जिस रिएक्टेंट का रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, जो कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं वो क्या करते हैं? रिएक्टेंट साइड से भी ले लेते हैं, प्रोडक्ट साइड से भी ले लेते हैं। हमेशा दिमाग में रखना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट आर ऑलवेज फ्रॉम रिएक्टेंट साइड, दे आर नेवर फ्रॉम प्रोडक्ट्स। ठीक है, जब भी पूछे व्हाट विच इज ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, विच इज रिड्यूस सब्सटेंस, विच इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विच इज रिड्यूसिंग एजेंट, हमेशा आपको कहां से लेना है? रिएक्टेंट से, प्रोडक्ट साइड से कभी नहीं लेना इसमें। प्रोडक्ट उसका रिजल्ट है, आउटपुट है, वो एजेंट नहीं है। ऑलराइट, सो अंडरस्टूड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? यस सर। मैंने नोट भी लिखा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस है जिनका खुद का रिडक्शन होता है। जस्ट अपोजिट ऑफ इट इज रिड्यूसिंग एजेंट। इट इज ए सब्सटेंस व्हिच कैन ऐड हाइड्रोजन, मतलब जो दूसरे को हाइड्रोजन दे सके, और दूसरे को हाइड्रोजन देगा तभी तो दूसरा रिड्यूस होगा, तो दूसरे का रिडक्शन होगा, इसका खुद का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। So reducing agents are those substances which can donate hydrogen or which can donate electropositive element to other materials. Another definition, reducing agents are those materials which can remove oxygen, ठीक है, from others, मतलब which can take oxygen from others. तो अगर ये ऑक्सीजन लेगा तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा, इसका मतलब रिड्यूसिंग एजेंट होगा। So those substances which can remove oxygen or electropositive element from other materials, दूसरे मटेरियल से ऑक्सीजन निकाल सके या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को जो निकाल के ले सके, वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। और तीसरा which can lose electrons, इलेक्ट्रॉन लूज कौन करते हैं? मेटल्स। Since metal lose electrons, therefore metals are considered as reducing agent. Since non-metals generally have tendency to gain electrons, they are generally considered as oxidizing agents. Children understood? Clear? Yes, sir. सर एक बार एग्जांपल बता दीजिए। आ गया, चिंता नहीं करो, मैं एक दो बार बता चुका हूँ, तीसरी बार भी बता रहा हूँ। नोट सर एक बार आप HNO3 का कुछ बता रहे थे सर। HNO3 का भी बता दूंगा आपको। HNO3
देखो, जब हम किसी भी मेटल को किसी एसिड में डालते हैं, जैसे HCl में, H2SO4 में, एसिटिक एसिड में, तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। ठीक है, ये मेटल्स की प्रॉपर्टी है और एसिड की भी प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर एसिड क्या है, HNO3 है, इंस्टेड ऑफ HCl HO3, कोई एसिड दूसरा नहीं है, HNO3 अगर एसिड है, तो जब कोई मेटल रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं निकलती। वो इसलिए नहीं निकलती क्योंकि HNO3 बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे ही HNO3, क्योंकि HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे मेटल उससे रिएक्ट किया और हाइड्रोजन बना, वो हाइड्रोजन तुरंत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 से रिएक्ट करके वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए आउटपुट के रूप में हमको हाइड्रोजन गैस नहीं मिलती बल्कि वाटर मिलता है। यस यस सर, आगे सर। Okay, now example, Fe plus S give rise to FeS। ठीक है, हमको इससे बताना है कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ। तो Fe देखिए, Fe में क्या हो रहा है, सल्फर आके ऐड हो गया, तो सल्फर ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, Fe में आके जुड़ा तो FeS बना। तो Fe में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, इसका मतलब Fe का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। ठीक है, और सल्फर में क्या जुड़ रहा है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट Fe जुड़ रहा है FeS बनाने के लिए, इसका मतलब सल्फर का क्या हुआ, रिडक्शन। अब सल्फर का रिडक्शन हुआ, इसका मतलब सल्फर क्या है, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग। ठीक है, आयरन का क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन, इसका मतलब आयरन क्या है, रिडक्शन। ठीक है। अब देखिए रिएक्शन कैसे हो रही, ये रिएक्शन होगी कैसे एक्चुअली, पहले सबसे पहले Fe जैसे S के कांटेक्ट में आएगा, इट विल लूज इलेक्ट्रॉन। Fe loses electron from Fe di positive ion by loss of 2 electrons. So 2 electrons are lost and loss of electron is called as oxidation. इसका मतलब Fe का कन्वर्शन Fe di positive में क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बिकॉज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टेकिंग प्लेस। जब Fe इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन को कौन लेगा, सल्फर। तो सल्फर गेन्स 2 electrons and form S di negative। ठीक है, and gain of electron is called reduction। इसका मतलब सल्फर का क्या हुआ, रिडक्शन। तो सल्फर का रिडक्शन हुआ, इसका मतलब सल्फर क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर दोस सब्सटेंसेस व्हिच कैन गेन इलेक्ट्रॉन्स। आयरन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट मैंने डेफिनेशन लिखी है, रिड्यूसिंग एजेंट कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसका रिडक्शन, वो रिड्यूसिंग एजेंट जैसा बिहेव करेगा, जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा बिहेव करेगा। क्लियर, हियर Fe is reducing agent। S प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, S डाई नेगेटिव, ये वाला फिर से बता दीजिए। S है न्यूट्रल एटम है, 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया मतलब 2 नेगेटिव चार्ज आ गया इसमें। अब S से क्या हुआ, 2 नेगेटिव बन गया ना, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द प्रोसेस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। लिखा है सल्फर गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन। और जब सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो सल्फर का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ठीक है, और सल्फर का रिडक्शन हुआ इसलिए सल्फर क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्यों होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डेफिनेशन क्या है, सब्सटेंसेस व्हिच कैन गेन इलेक्ट्रॉन्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे सल्फर ने इलेक्ट्रॉन लिया इसलिए सल्फर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑलराइट, सर तो APS में जो H है वो S डाई नेगेटिव है। 100%। तो सल्फाइड आयन है, सल्फाइड आयन का फॉर्मूला क्या होता है, S डाई नेगेटिव आयन, आयरन सल्फाइड है वो। ठीक है, अब इसमें बचा कोरोना एंड कोरोना नहीं, कोरोजन। ठीक है, कोरोजन, द प्रोसेस ऑफ attack of atmospheric conditions like air and moisture on metal surfaces, as a result of which the metal surfaces, the quality of metal surfaces get degraded, ठीक है, is called as corrosion. So whenever freshly cut metal surfaces are attacked by moisture or air, the shining appearance, that is luster of metallic surface, is lost. This process of slowly eating away of topmost shining layer of metals, as a result of which the quality of metal get degraded, is known as corrosion. And if the corrosion is taking place to iron, then it is called as rusting.
So rusting means corrosion of iron. For all other elements, it is simply called corrosion. But if corrosion is taking place in iron articles, then it is called rusting. Clear? Corrosion or rusting is a redox process. ठीक है, हमेशा देखना. Corrosion is a redox reaction because metals gets oxidized and oxygen gets reduced to oxide ion. Oxygen क्या है? O2, zero oxidation number है, get converted into oxide ion, O डाई नेगेटिव. So जीरो से डाई नेगेटिव होगा क्या होगा? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है, जबकि मेटल गेट्स ऑक्सीडाइज इन ऑल कोरोजन प्रोसेसेस. Now here are some examples. First, corrosion of silver. What is color of silver? Silver color. It is attacked by H2S gas and oxygen gas present in air. ठीक है. सिल्वर ऑर्नामेंट्स जो होते हैं, पायल वगैरह, जो कि कुछ दिनों बाद वो क्या हो जाती है? काली सी हो जाती है. क्यों हो जाती है? क्योंकि उनका कोरोजन हो जाता है. So 4Ag plus 2H2S plus O2 give rise to 2Ag2S plus H2O. ठीक है. तो इसमें क्या हुआ? सिल्वर का कोरोजन हो गया. ठीक है. अब ये रेडॉक्स कैसे है? सिल्वर यहाँ प्योर एलिमेंटल फॉर्म में है. ठीक. तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है. यहाँ पे Ag2S बन गया, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, क्योंकि सल्फाइड का -2, तो 2 सल्फर का +2 होना चाहिए और 1 सल्फर का +1. सो 0 से +1 हो गया, इसका मतलब सिल्वर का ऑक्सीडेशन हो गया. ठीक है. और यहाँ पे ऑक्सीजन कैसा एलिमेंटल फॉर्म में, मतलब 0 ऑक्सीडेशन नंबर है, इससे वो H2O बन गया, ऑक्साइड बन गया, इसमें ऑक्सीजन का -2 है. सो 0 से -2 हो गया, मतलब रिडक्शन हो गया. ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया, सिल्वर का ऑक्सीडेशन हो गया. सो देयरफॉर कोरोजन ऑफ सिल्वर इज a redox reaction. What is color change? Color of silver is silver color. After some time it becomes dull gray or dark in color. इसी की वजह से सिल्वर ऑर्नामेंट्स कुछ दिनों बाद गंदे से डल से दिखने लग जाते हैं, because of corrosion of topmost shining layer of silver. Another example of corrosion is corrosion of copper. सर हाँ जी. एक मिनट, वो फिर से बोलना. 0 से -2 हो गया, तो उसमें क्या हुआ? ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, घट गया. घट गया तो रिडक्शन तो क्या होगा? रिडक्शन. और फिर उसके पहले क्या बोला था? सिल्वर में 0 से +1 हो गया, इंक्रीज हो गया, तो ऑक्सीडेशन. सिल्वर का ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया. आप ये कॉपर का देख लीजिए, Cu plus O2 plus CO2 plus XH2O. अब एयर में क्या क्या प्रेजेंट है? वाटर मॉइस्चर ही प्रेजेंट है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रेजेंट, ऑक्सीजन गैस इज प्रेजेंट. ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन जब कॉपर के कांटेक्ट में आती है सरफेस में, इट फॉर्म्स हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर कार्बोनेट व्हिच इज कॉल्ड कोरोजन ऑफ कॉपर. ठीक है. पहले कॉपर का कलर कैसा होता है? रेड ब्राउन. अब कैसा हो गया? ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है इस. ये हाइड्रेटेड कॉपर कार्बोनेट ग्रीन कलर की कोटिंग है. ठीक है. सो कलर चेंज समझ में आ गया आपको. यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0. ठीक है, बिकॉज प्योर एलिमेंट है. कॉपर कार्बोनेट में कितना हो गया? +2. क्योंकि कार्बोनेट आयन क्या होता है? -2. पूरा कार्बोनेट आयन -2, तो कॉपर क्या होगा? +2. तो 0 से +2 इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसका मतलब कॉपर का 0 से +2 हो गया, इसका मतलब कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया. ऑक्सीजन का देखिए प्योर एलिमेंट है, मतलब 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका. और यहाँ कार्बोनेट में आ गया तो -2 आ गया, वाटर में भी -2 आ गया. सो किसी में भी लिखिए ऑक्सीजन का -2 हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? 0 से -2, इट मींस रिडक्शन. ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया. हियर इज द एग्जांपल ऑफ कोरोजन ऑफ सिल्वर. ये सिल्वर का चम्मच था, बाद में डल हो गया ऐसा, टार्निश सिल्वर कहते हैं इसको. रिएक्शन लिखी हुई है आपके पास. 4Hg plus 2H2S plus O2 gives rise to 2Hg2S plus this. This is corrosion of silver. ये कॉपर का देखिए, कॉपर का एक बड़ा सा ये रॉड था, जिसमें आप देखिए ग्रीन कलर की कोटिंग डिपॉजिट हो गई इसकी सरफेस पे. तो कॉपर का जो रेडिश ब्राउन कलर होता है वो कोरोजन की वजह से कैसा हो जाता है? डल ग्रीन कलर का हो जाता है. कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग. सर उसमें हाइड्रोजन और कार्बन का तो बताया ही नहीं. किसमें? वो Cu वाले रिएक्शन में. हाइड्रोजन, आपको कोई जरूरी नहीं कि सारे सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो. उसमें से एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसका ऑक्सीडेशन हो, दूसरा ऐसा होगा रिडक्शन होगा. अगर दो ऐसे मिल गए 2 पेयर, मतलब वो रिडॉक्स है. सभी का डिस्कस करने की जरूरत नहीं. ठीक है.
नाउ कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। बाकी एलिमेंट्स के लिए हम उसको क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं। जब आयरन में होता है उसको रस्टिंग बोलते हैं। रस्ट इज मेनली हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड। आयरन थर्ड ऑक्साइड का मतलब जहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +3, आयरन की वैलेंसी 3। हाइड्रेटेड मतलब नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल सरफेस। तो फॉर्मूला क्या हो गया? Fe2O3, ठीक है, ये हो गया फेरिक ऑक्साइड यानी आयरन थर्ड ऑक्साइड, डॉट XH2 मतलब नंबर ऑफ मॉइस्चर या नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड विद इट इन इट्स इंटरपार्टिकल स्पेस। नाउ रस्टिंग weakens the surface structure of body of vehicles, bridges, iron railings etc. रिएक्शन क्या होगी रस्टिंग की? 4Fe plus 3O2 plus XH2 give rise to 2Fe2O3 dot XH2. This compound is called rust. ठीक है, आप पिक्चर देख सकते हो। ये पहले प्योर आयरन था, फ्रेश आयरन जो ग्रे कलर का है। रस्टिंग के बाद कैसा हो गया? ये डल ब्राउन कलर का हो गया। इधर आप रेलवे ट्रैक्स दिख रही हैं आपको, जो पहले कैसी थी? ग्रेस कलर की थी। रस्टिंग की वजह से ये येलोइश ब्राउन हो रही है, ब्राउनिश हो रही है। क्लियर? नाउ methods of prevention of rusting. Iron articles should be painted. The machine part be oiled and greased. Galvanized iron should be used for construct iron articles. देखो आयरन आर्टिकल शुड बी पेंटेड, पेंट ऊपर चढ़ा दो रस्टिंग रुक जाती है। द मशीन पार्ट्स टू बी ऑयल्ड एंड ग्रीस, उसमें ऑयलिंग और ग्रीस करते हैं ताकि रस्टिंग ना हो। गैल्वेनाइज्ड आयरन शुड बी यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट आयरन आर्टिकल्स। व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन? द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ जिंक मेटल ओवर आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। जिंक और क्रोमियम। हाँ, जिंक और क्रोमियम, ठीक है, बेसिकली जिंक, ठीक है, ज्यादा यूज जिंक का होता है। तो जब आयरन आर्टिकल के ऊपर जिंक का डिपोजिशन कर देते हैं लेयर का, देन इट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइज कर दोगे तो जिंक का क्रोजन होगा, आयरन का नहीं होगा, आयरन बच जाएगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ आयरन आर्टिकल्स प्रिवेंट इट्स रस्टिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग आप 6, 7, 8 से पढ़ रहे हो कि एक मेटल के ऊपर एक लेस रिएक्टिव मेटल की सरफेस को डिपोजिट कर देना इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये एक टैंक है जिसमें जिंक मेटल को मेल्ट करके डाला गया है, मोल्टन जिंक है ये। आपको जिस भी आर्टिकल, जैसे ये आयरन की रॉड लिया है, आयरन को रॉड को इसमें जिंक में मेटल में डिप कर देगा, बाद में निकाल लेगा, ठंडा हो जाएगा तो उसके ऊपर जिंक का गैल्वेनाइजेशन हो जाएगा। ये फैक्ट्री में गैल्वेनाइजेशन ऐसे ही किया जाता है। आयरन आर्टिकल जो बड़े बड़े होते हैं इसे जिंक के टैंक में डाल दिया जाता है और उसकी वजह से बाद में निकालते हैं क्रेन वगैरह से, तो वो गैल्वेनाइज हो जाता है, उसके ऊपर जिंक की कोटिंग होती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग देखिए क्या है, एक ही हमारे पास बैटरी है, इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हमने भर लिया बीकर में, कॉपर का एक इलेक्ट्रोड रखा, ठीक है, और दूसरे में ब्रास का इलेक्ट्रोड रखा है सपोज, ठीक है। ब्रास में क्या होता है? जिंक होता है, कॉपर आयंस होते हैं ये। तो इसकी वजह से अब देखिए क्या होगा, जो मोर रिएक्टिव मेटल है उसके आयन सॉल्यूशन में आएंगे और लेस रिएक्टिव मेटल के ऊपर जाके, नहीं सॉरी, कॉपर सल्फेट है, ये कॉपर है, तो यहाँ से कॉपर जो है निकलेगा, कॉपर आयन निकलेंगे, कॉपर में जाएंगे सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट का भी कॉपर इसमें आएगा और जो कैथोड है, कैथोड के ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाएगा। सो जो मेटल यूजुअली जिसका हमको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना, जिसकी लेयर ऊपर चढ़ानी है, उस मेटल का हम एनोड बनाते हैं और उसी मेटल के किसी सॉल्ट का सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है, फिर उसमें करंट पास करते हैं बैटरी से। तो जो आपने कैथोड बनाया था, कैथोड के ऊपर एनोड से मेटल आयन निकल के जाके उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से उसका क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज हम कहाँ करते हैं? उसी का सॉल्ट सॉल्यूशन लेना क्यों है? ताकि आयंस कॉमन रहे, दूसरे आयन हो जाएंगे, कॉपर का भी आयन आ गया दूसरे के, तो दोनों डिपॉजिट होंगे ना फिर जाके, तो आपको प्योर सब्सटेंस नहीं मिलेगा। और जैसे हमको गोल्ड की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके हम आर्टिफिशियल ज्वेलरीज बनाते हैं, स्टील का कोई आर्टिकल ले लिया, स्टील की चेन ले ली, कुछ भी, और उसको क्या किया, इलेक्ट्रो कैथोड बना दिया, और क्या किया, गोल्ड का सॉल्यूशन ले लिया, एक पतला सा गोल्ड का वायर लेके ये आपको क्या बना दिया, इसको एनोड बना दिया। तो उसके बाद गोल्ड का जो सॉल्ट है ऑरिक क्लोराइड, और यहाँ से गोल्ड वो सॉल्यूशन में जाएगा, सॉल्यूशन से जाके सिल्वर के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा या स्टील के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा और उसके ऊपर वो गोल्ड कोटेड ज्वेलरी बन जाएगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट रस्टिंग। लास्ट हेडिंग इज लेफ्ट, दैट इज रेंसिडिटी, जिसमें मैं आपको ढेर सारी पार्टी देने वाला हूँ, ठीक है। कुरकुरे भी खिलाऊंगा, चिप्स भी खिलाऊंगा और ये स्पाइसेस भी खिलाऊंगा, फ्रिज के अंदर से निकाल के बहुत से मटेरियल्स भी खिलाऊंगा, ठीक है। दैट विल डील इन नेक्स्ट पीरियड। Otherwise, this is very easy and you can
study if this portion is not completed before the test. This is very important. Today I'll send these notes to you. इसमें कुछ नहीं है, food items get oxidized, इसकी वजह से उसमें बैड स्मेल आने लगती है, स्ट्रक्चर खराब हो जाता है, टेस्ट बदल जाता है। रेंसिडिटी प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं कि एयर टाइट कंटेनर्स में रखते हैं, रेफ्रिजरेटर्स में रखते हैं, या नाइट्रोजन गैस पैकेट्स के अंदर फ्लश कर देते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन गैस क्या करता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। ठीक है, मतलब नाइट्रोजन क्या है, जो चिप्स वगैरह जिसमें फैट्स ऑयल है उसको ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आने देता। ठीक है, इसलिए ऑक्सीडेशन नहीं कोई और गैस भी तो डाल सकते हैं ना। और गैस तो और भी महंगी है, नाइट्रोजन तो सबसे इजीली अवेलेबल है, 78% एयर में नाइट्रोजन है। आप हीलियम भर दो, हीलियम महंगी पड़ती है, तो चिप्स की प्राइस जो 10 रुपए का मिल रहा है वो 50 रुपए की मिलेगी। ठीक है, so this is rancidity and from my side this chapter gets over. All right? सर आज ये लास्ट क्लास है। इसके बाद मैं बेटा करीब नेक्स्ट वीक में हॉलीडे में हूँ, आउट ऑफ स्टेशन में। सर तो आप रिवीजन भी नहीं कराएंगे? वो मैं 1 तारीख के बाद ही करा पाऊंगा आपको। ठीक है, आपके एग्जाम्स होंगे 6, 7, 8 के आसपास में, तो 1 तारीख के बीच में 1-2 क्लासेस ले लूंगा मैं रिवीजन। ठीक है, और सर डाउट आपको कभी भी कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप कर दो अपने क्वेश्चन, मैं उसका आंसर सेंड कर दूंगा। सर आप ऑडियो बताए ना, उसमें जल्दी समझ आता है। ठीक है, ओके, ठीक है, चलो। ओके, नाउ इट्स 4:20, बेल हैज गॉन, इट्स 4:21। ओके सर। ठीक है, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट लॉग आउट, साइड आउट। थैंक यू सर। सर आप पीडीएफ सेंड कर दीजिए। सर सर हाँ, आई सेंड सर ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।